Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening to each one of you in different parts of the world. Once again, I'm back with my show Moms Monday Morning. आप सभी को पता है, फिलहाल जो लोग नए जुड़े हैं, I usually bring the show Moms Monday Morning only for mothers who are seeking for some trustable platform to work from home along with their families and children. उन्हीं के लिए स्पेशली आई यूजुअली कम ऑल्टरनेट मंडेज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग दिस टाइम 8:30 सो दैट आप अपने बच्चों को स्कूल भेज के अपना मी टाइम हमारे साथ इंजॉय कर सकें. सो देखा जाए, कभी भी आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए इफ यू सीकिंग फॉर एनी अपॉर्चुनिटी जो ट्रस्टेबल है, यस हार्ड वर्क सभी चीज में लगता है, बट वी आर हेयर विद द स्मार्ट वर्क जिसमें डेडिकेशन भी चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन भी चाहिए, और कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट टू आवर प्लेटफॉर्म. तो अगर आप हमसे कोरिलेट करते हैं, आप डिटर्मिन्ड हैं, एजुकेटेड हैं, और अगर आप हमारे साथ स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क भी, तो हमारे साथ जुड़े. एंड यहाँ इस लाइव सेशन में आई डू इनवाइट माय बिजनेस पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आज स्पेशली मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ, एंड स्पेशली टू सेलिब्रेट हर विन and to know her experience till now in the business. So let's welcome Raman Dhaliwal. She is an awesome person and my good friend in this business. Recently, she has achieved a milestone. अब एक business coach है ये online and helping many women to become a successful online business owner. So let's go to Raman Dhaliwal. हेलो, सत श्री अकाल गगन, कितना की हाल चाल ने? So thank you Gagan, first of all thank you to inviting me on your page and giving me a opportunity कि मैं ਤੁਹਾਡੇ followers ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ. It's so good. It's really good. ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. So it's really good. So thank you for this opportunity. ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਗਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਮੋਸਟ 3.5 year ਅਗੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਔਨ ਦ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ opportunity grab kita and believe me, within the year, with the earning potential into the business and with my hard work, I take it to the full time, and by till now I'm back here. business, yeah, we lost you in the middle. Sorry, there's a network issue over here. We are facing some tech. Yeah, I think हमारे काफी disconnection की trouble हो रही है. So sorry guys, that we are facing some technical issues today. Raman, can you hear me? Am I clear? हाँ जी, yeah, आप clear अभी. Yeah, I think, sorry guys, we are having some technical issues, and we are having some connection problems. So, I just wanted to give the brief introduction of myself, that I'm a busy mom, and beside that, I just be the part of the just a business. Hey, we get you back. Oh, sorry. I don't know what's going on. I think it's like a Ram Mandir celebration in India today. Congratulations to every Indian. It's a proud moment for India. And maybe we so much of technical glitch. Internet हमारा full है with the celebration. But I'm trying my best to keep the signal in my home. Sorry, sorry. No, that's okay. That's okay. Not to worry about. So where were हम कहाँ पहुँचे थे? So I just provide my introduction. Great. That's great. So Raman, I know you're doing already this business very successfully. एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है वुमन में, है ना? तो what was Raman before and what is Raman now?
इस एक्चुअली गगन बी ऑनेस्ट इट्स अ ह्यूज डिफरेंस लाइक जो रमन आज है इस रमन को कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था like the way of my confidence, the way of my knowledge, the way of talking to one. अगर आप लोगों ने मेरा पहले like गगन के साथ एक लाइव सुना होगा और उससे पहले भी जो मैंने लाइव किए is huge difference, I you know. remember. Exactly. So it's a huge difference. Like पहले जो रमन थी वो बहुत ही introverted थी, बहुत शाय थी लोगों के साथ बात करने में, क्योंकि वो होता है ना कि हम जो लड़कियां हैं जब हम ग्रो होते हैं हम सिर्फ कॉलेज से घर, घर से स्कूल, ट्यूशंस, इसी इतने माहौल में ग्रो होती हैं. एंड आई एम द पर्सन कि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि हमारा कोई बड़ा जैसे फैमिली थी, क्योंकि हमारी फैमिली सारी यहाँ थी, राइट. तो हम इतना कहीं आते जाते भी नहीं थी, तो ज्यादा टाइम हम घर में ही स्पेंड करते थे. तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था इतना, जब लोगों से बात करते थे हिचकिचाती थी, राइट, कि क्या बोलूं कैसे बोलूं, राइट. तो वो चीजों का एक ह्यूज डिफरेंस आया है. अब मुझे लगता है कि जब मैं बोलना शुरू होती हूँ तो मुझे स्टॉप करना हार्ड हो जाता है, राइट. सो अ वे ऑफ कॉन्फिडेंस अ लॉट, a way of person I change a lot. So it's a huge difference, like it's a huge difference, and I feel proud on myself. And ये transformation इस business के platform के through ही हुई, because of the community support, because of all my mentors and coaches, or connecting with the right minded people. क्योंकि जब आप right minded लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, तो आप उन्हीं के जैसा सोचने लग जाते हो. जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने लाइक इस जिंदगी में कोई सक्सेस हासिल करनी है तो उन लोगों के साथ बैठो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट. तब आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है. तो सेम मेरी हुई है, क्योंकि इस बिजनेस से आने से जब एक राइट माइंडेड क्राउड के साथ इकट्ठे हुए, कम्युनिटी के साथ बैठना उठना, बातें करना, तो ह्यूज डिफरेंस है, लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो मुझे पता है मेरे ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, मैं कभी जा रही हूँ, मैं कभी आ रही हूँ, बट इट इज नॉट माय इशू, इट्स अ टेक्निकल ग्लिच. आई डोंट नो व्हाट दिस एयरटेल इज प्लेइंग विद मी टुडे. इट्स लाइक न्यू एक्सपीरियंस, बट थैंक यू रमन फॉर बी सो सपोर्टिव, और आप कैरी ऑन कर रहे हैं. थैंक यू. आई होप रिकॉर्डिंग होगी तो सबको बाद में दोबारा स्मूथली दिखेगा. सो यस, डेफिनेटली देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. मेरे बीच में खुद ही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. कभी कैमरे को फेस ना करना, और ऑटोमेटिकली इतने सारे बिजनेस पार्टनर्स से, देखिए मैं इंडिया में बैठ के कितने अलग अलग कंट्री के बिजनेस पार्टनर से इंटरेक्ट कर रही हूँ. इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज नॉट इजी. इट इज नॉट इजी. सो अब हम लोग जब लेडीज सोचते हैं कुछ करने के लिए, तो हम लोगों को अक्सर राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता चलता. व्हाट इज द राइट प्लेटफॉर्म, शुरुआत कहाँ से करी जाए, या फिर किस टाइप का काम शुरू किया है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन में ट्रस्ट नहीं है सबको. देयर आर सो मेनी फ्रॉड्स, है ना, सो मेनी स्कैम्स गोइंग ऑन. तो ऑब्वियसली चाहे ऑनलाइन वर्क करना, ऑफलाइन, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा. राधा आजकल स्मार्ट वर्क का जमाना है. तो रमन, let's discuss about similarities and difference between this online and offline business. क्यों ऑनलाइन पे आजकल लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं? पूरा क्राउड देखा जाए, एक साल के अंदर अंदर मैंने बहुत चेंजेस देखा है. मैनी पीपल हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन बिजनेसेस. तो लेट्स डिस्कस क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं. सो अगर गगन हम इसके बारे में बात करें, फर्स्ट ऑफ द जो इसकी बिजनेस की स्टार्टअप, राइट. अगर हमने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना हो, वी हैव नो आइडिया कि किसके साथ हम प्लग इन हो, कहाँ से शुरू करें, क्या लोकेशन होगी, क्या कंपनी होगी, क्या प्रोडक्ट, वी हैव नो आइडिया. तो हमारा ये जो बिजनेस है, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि बिजनेस इन अ बॉक्स है. Like तभी as a me as you, we are getting successful into this business because they laid out everything for us. We just need to plug it in. When we don't need to find the source. कि कोई हमने sources नहीं find करने, कहीं इधर उधर जाकर कुछ भी नहीं find करना. सब कुछ हमारे दिया गया है, ठीक है. तो अगर हम पार्ट आए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके मुकाबले ये ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी नहीं. जो स्टार्टअप कॉस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में, राइट, इट्स नथिंग. इट्स वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट देकर आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं. और अगर आपने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना होगा तो बिगिनिंग में भी आप इतना पैसा लगाते हो, फिर भी आपको कुछ ऐसा नहीं होता कि आर यू गेटिंग द राइट गारंटी नहीं कोई. मैं आपकी सक्सेस गारंटी है. अगर आप अपने जो आपका पार्ट है ना उसको आप 100% की तरह करते हो तो आपकी सक्सेसफुल गारंटी है. लाइक मैं ये आज कहती हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें फेस की है. जब मैंने बिजनेस शुरू किया था मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, लाइक एक ये चाह थी कि कुछ करना है, पर आगे पता नहीं था कि कैसे होगा, राइट. जर्नी शुरू कर ली थी पर पता नहीं था कैसे होगा. पर
आई डोंट नो डे बाय डे जैसे ग्रो हो रही हूँ, बिलीव मी, समटाइम जब मैं अपने आप को पहले देखती हूँ कि हाउ इट्स हैपेंड, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रूवन सिस्टम, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी सपोर्ट, कि ऐसा लगता है कि कोई आपको ना एग्जैक्टली। उंगली पकड़ कर चला रहा है इस बिजनेस में, हाँ, राइट, हैंड क्योंकि होल्डिंग हर इज चीज वेरी गुड इन दिस कम्युनिटी, ये तो है, ये हैंड होल्डिंग बहुत आती बढ़िया। दैट्स ट्रू। एंड दूसरा है वर्किंग आवर्स। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस को देखें, अगर जैसे हमारी फैमिली में किसी ने भी बिजनेस किया हो, वो इतना घर से 8 o'clock निकल गए, रात तक कब घर वापस आएंगे नो आइडिया, और आते हैं इतनी फ्रस्ट्रेशन से आते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ। इस बिजनेस में मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कब काम करती हूँ, क्योंकि मैं हियर एंड देयर, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि हियर एंड देयर करती करती मैं काम करती हूँ। कभी ये नहीं कि मैंने सर्टेन अमाउंट आवर्स में बैठती हूँ, जैसे बच्चों को स्कूल, तो अगर एग्जैक्टली। मेरे पास 1 or 2 hours हैं, आई स्पेंड दैट, फिर अपना कुकिंग वगैरह करके उसके बाद 1 or 2 hour हियर एंड देयर, जैसे हियर एंड देयर करके मैं काम करती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं काम करती हूँ, पर मेरा काम साथ साथ हो रहा होता है, राइट। दूसरा ये है Basically, it कि is very flexible. You can say the main thing is the flexibility which we enjoy. We all women enjoy. दैट्स ट्रू, वी ऑल एंजॉय। और दूसरा इसमें ये आ जाता है कि अगर हम कहें कि लेबर, यहाँ पर आप, यू आर द सीईओ, यू आर द मैनेजर, यू आर द एम्प्लॉय, यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, आपको मैन पावर फाइंड करनी पड़ेगी, आपको इन्वेंटोरी रखनी पड़ेगी, आपको फिर देखना पड़ेगा Exactly. कहाँ शिफ्ट करना है, कैसे, देयर इज लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, राइट। इस बिजनेस में आपने True. कोई इन्वेंटोरी नहीं रखनी, राइट, आपने कोई क्रॉस द बॉर्डर शिपिंग नहीं करनी, दैट्स नॉट इवन योर हाँ पार्ट, जी। राइट। तो नहीं उससे तो कंपेयर आधा अगर टाइम हम तो देखें, पैकेजिंग और कोरियर पे ही निकल जाता है, आधा टाइम तो सामान इकट्ठा इट्स करने ट्रू, पे निकल जाता है, और कहीं बार सामान ना आपका सेल आउट हो तो वो स्टॉक अप होता चला जाता है, वेस्टेज स्टॉक बहुत अप हो रहती है जाता है, उसमें। या और हाँ, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, आपको बल्क में पहले वो चीजें बाय करके इन्वेंटोरी करके रखनी बिल्कुल, पड़ेगी, फिर पहले आपका वो सामान पहले बिकेगा हाँ, नहीं बिकेगा कोई गारंटी, राइट। तो इस या बिजनेस में ऐसा एग्ज़ैक्टली। कुछ नहीं, राइट। तो सिर्फ जो स्टार्टअप कॉस्ट की अगर हम बात करें, मिनिमम लगाकर, वो भी आप एक बिजनेस के पैकेज के ऊपर लगा रहे हो, जहां पर आपको ऑटोमेशन मिल रही है, आपको सेल फनल्स मिल रही है, राइट, आपको कहीं भी कुछ भी जाकर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, राइट। तो वो चीज इस बिजनेस में बहुत ही अच्छी है कि आपको बिजनेस इन अ बॉक्स मिल रहा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। अगर आज अगर मैं कहूँ कि मैं अगर ट्रेडिशनल कोई बिजनेस कर रही होती, आई थिंक मैंने 6 month में गिव अप कर देना था कि आई एम डन विद दैट, राइट। पर इस बिजनेस में अभी तक मैं प्लग इन हूँ, बिकॉज एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आई नो वेयर आई एम गोइंग, आई नो माई गाइडेंस विच आई हैव टू फॉलो, ट्रू, ट्रू, बिल्कुल। राइट। एंड एंड दूसरा हो जाता है कि दूसरे बिजनेस, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएं तो वहां पर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, दूसरे लोगों को कहना पड़ता है कि हे दिस इज माय बिजनेस, और यू हैव टू समटाइम यू हैव टू गिव द पैम्पलेट्स हियर एंड देयर टू टेल। पर यहाँ पर वी आर डूइंग ऑनलाइन, सो यू आर प्रमोटिंग ऑनलाइन द बिजनेस, तो आपकी जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन है, राइट। वैरायटी ऑफ, एज वी नो कि आज का जो कंज्यूमर है वो ऑनलाइन बैठा है। अगर हम खुद भी बिल्कुल, देखें दूसरे बिजनेस के लिए, समटाइम हम सोच रहे होते हैं, वो चीज हमें शो होनी शुरू हो जाती है, एंड दिस इज द टाइम टू बाय। सो सेम हम घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में, राइट, वी आर रीचिंग टू वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, आप इंडिया में, मैं कनाडा से बिल बात कर रहे हैं, हाउ, बिकॉज ऑफ और द आराम से घर टेक्नोलॉजी, बैठे हुए हैं, कोई ऐसा स्टूडियो सेटअप नहीं है। हमारे कंफर्ट जोन, राइट। सो वो चीज अमेजिंग एग्ज़ैक्टली, है, तो या, right, दैट्स गुड। and yeah, that's amazing, or you're building a legacy, you're building a legacy for your यस, family members, for your kids, right, because now you're working for yourself, but eventually for the future you're gonna know that you're building something for your kids, जो आगे आने वाले टाइम में ट्रू। वो लेंगे, तक जो आज नहीं आई आपको थिंक आ रही दिस है इज वो अ उनको भी। सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द बिजनेसेस, दिस इज द Yes, सिमिलैरिटी। आप ऑफलाइन में भी आप अपने बच्चों पे ही आगे ट्रांसफर करते हैं, फैमिली मेंबर्स पे, yes, सो दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज इन ऑनलाइन बिजनेस आल्सो, दिस इज द it's true, yeah। सिमिलैरिटी। या कि आप ये नहीं कह सकते दैट्स कि गुड। मैं ही ऑनलाइन कर रही हूँ तो आगे मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। सेम ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह, जैसे आप एक दुकान आज सेट कर रहे हो ताकि आने वाले आपकी जनरेशन वो उस दुकान को संभाले, सेम उसी तरह आप आज अगर ऑनलाइन बिजनेस को सेटअप कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपके एज वी नो आज की जो जनरेशन है वो ऑनलाइन के लिए हाँ ही जी, है, राइट। तो वो अपने आप इस बिजनेस में आएंगी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बिल्कुल। इंटरेस्ट ले रही है, दे आर कीन इनटू टू लर्न कैसे होता है, क्या हाँ, दे आर होता है, ग्रोन अप नाउ। they दे आर know ग्रोन and अप they नाउ। asking that how it's working,
दैट्स सो सो रमन हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं. लेट्स वेलकम देम टू द शो. किरण इज देयर, हरप्रीत, एस्कोर हुंजन, किरण, हैरी बाजवा, किरण, हाय किरण, नीतू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, यूएस से नवनीत इज देयर. Hi Navneet, Aman is there. Thank you, Aman. Jinder Dhillo, Gurpreet from India, and my mother is from India again. Thank you, Mama, for being there. So देखिए, such a flexible platform, India, Canada, Australia अभी एक प्लेटफॉर्म में एक साथ बैठा हुआ है. And I'm just waiting That's for true, my that's Dubai true. people. दुबई की Yeah. थोड़ी अर्ली मॉर्निंग है, नहीं तो मेरी टीम अभी वो भी दुबई, इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग ओवर देयर. सो थैंक यू Mhm. गाइस जो अभी हमारे साथ देख रहे हैं, जो बाद में हमें देखेंगे. थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. सो देखा जाए, यस, ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंसेस, कई जगह तो सिमिलैरिटीज हैं, कई जगह डिफरेंसेस है, Yeah, बट देखा जाए जो कंफर्टेबली काम हो सकता है, स्पेशली फॉर वुमेन, दैट इज ऑनलाइन. बिकॉज that's बहुत true. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वी कैन नॉट मूव आउट, वी कैन नॉट लीव आवर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बच्चों को भी छोड़ के जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है. तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी मुश्किल हो जाता is helping us to sit at home and earn some extra and some better amounts है. with this That's true, business. that's true. So when we Raman talk about that ये legitimate है, taxable है, government approved है, what do we mean by that? कई लोग पूछते हैं how it is legitimate, क्या government approval है? सो इसमें क्या होता है कि जो हम लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर हमें टैक्स स्लिप्स मिलती हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम यहाँ पर कनाडा में Okay, टैक्स फाइल करते हैं, राइट. तो वो सबसे बिगेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारी जो कंट्री है इसमें टैक्सेबल बिजनेस होना बहुत जरूरी है, राइट. अगर आप उसको आगे बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं, राइट, तो आपको टैक्स स्लिप्स exactly. मिलती हैं. आई थिंक आपको इंडिया में भी टैक्स स्लिप्स आती होंगी एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ जी, जिसके बिल्कुल ऊपर जी, आप अपना टैक्स फाइल करते हैं, राइट. तो दैट्स बिल्कुल द बिल्कुल. बेस्ट, कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ हम एफिलिएट होते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग का, लाइक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट का मिला हुआ है सर्टिफिकेट. सो एज वी सर्टिफिकेशंस नो, मिली हुई है, yes. सर्टिफिकेशन मिली हुई है, और गवर्नमेंट्स के अंडर लॉज में ये आता है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वैसे ही कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आईडी दी जाती है जो रेवेन्यू के साथ रजिस्टर होकर आपके पास आती है. या और बाद में भी आप इसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं, जस्ट टू सेव योर टैक्सेस. इंडिया में तो यस. है, लाइक आप इसे जीएसटी रजिस्टर भी करवा सकते हैं इंडिया हाँ में जी, हमारे भी ये है. लेटर जैसे ऑन. मुझे अब इस ईयर मुझे करवाना ओके, पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी क्योंकि हमारे यहाँ पर है, जब एक सर्टेन अमाउंट अर्निंग को आप सरपास करते हो, हाँ तो जी. उसके बाद फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है. तो मेरे भी अभी इस ईयर मेरा होगा. या इंडिया में भी वुमेन और मैन वुमेन का अलग अलग इनकम टैक्स बार होता है. इफ यू आर रीचिंग हम्म, बियॉन्ड दैट बार, तो आपको हम्म, इसे लाइक मेरे ख्याल से कमर्शियल कराना पड़ता है, या फिर जीएसटी टैक्स नंबर लेना पड़ता है. आई एम नॉट दैट एट स्टेज, आई एम अबाउट टू रीच दैट स्टेज. यस. बहुत जल्दी मैं भी अपना रजिस्टर ओह यस, फॉर करवाऊंगी श्योर. हाँ जीएसटी जी, नंबर. हाँ जी. So या we are also in that race कि अपना बिजनेस हो, रजिस्टर्ड हो, और रजिस्टर हमारा होता है खुद के Australia. जीएसटी नंबर्स हो. इट्स अ हाँ प्राउड जी. फीलिंग कि आप घर दैट्स ट्रू. बैठे ही इतना अच्छा अचीव कर पा रहे हैं. सो दैट्स ट्रू. जैसे अभी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट्स डिस्कस करे हैं इस बिजनेस के. फॉर यू व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो इसमें एक वाओ फैक्टर है, जस्ट लुकिंग वाओ फैक्टर होता है ना, वो क्या है हाँ इसमें? जी. सो सबसे बिगेस्ट वाव फैक्टर इसका है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है. दूसरा इसका बिगेस्ट है कि इस गिव्स मी माय ओन आइडेंटिटी. जो मेरे लिए सबसे बड़ा है कि कमिंग थ्रू दिस बिजनेस, आई गेट माय सीट ऑन द टेबल. आई गेट द सीट ऑन द टेबल, अदरवाइज मैंने लाइक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, उनमें से कहीं जकड़ कर रह जाना था. मुझे ऑलवेज यही एक रिग्रेट रहना था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ आगे नहीं कर पाई, राइट. क्योंकि हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हमारे भी ड्रीम्स होते हैं, पर मदर बनने के बाद हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो जाती है, राइट. सो इट्स हार्ड टू कीपिंग इट साइमल्टेनियसली. पर उसमें यही चीज इसमें बेस्ट है कि इसने मदर्स को, लाइक मुझे तो समटाइम ऐसे लगता है कि ये बिजनेस ना मदर को ही ध्यान में रखकर इसका मदर्स. जो सारा लाइक सिस्टम बिल्ड किया गया है. मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वी आर सो बिजी इन आवर लाइफ, और इसमें वही चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास. कभी भी आप फ्लेक्सिबल. कहीं भी कर सकते हो. एंड वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है जो आपको अलाउ करती है कि बिसाइड यू हाँ डूइंग जी, योर चोर, यू कैन हियर द ट्रेनिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट. एग्जैक्टली. वो सो सबसे बेस्ट. रमन, हाँ जी,
हाँ जी, रमन, ये तो बात होगी कि व्हाट इज़ द बेस्ट। अब आई नो यू आपने मैंने देखा है इस बिज़नेस में ये बहुत ईज़ी है, लाइक और किसी फर्म में, जॉब में या आप बिज़नेस में होंगे तो आपकी जो ग्रोथ है ना, वो बहुत स्लो है, लाइक मे बी आफ्टर 5 इयर्स, मे बी आफ्टर 6 ईयर, बट आई हैव सीन इन दिस बिज़नेस मेरे बिज़नेस पार्टनर दे आर अचीविंग विदिन मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 इयर्स में यू आर अचीविंग द हाईएस्ट, 1 ईयर में भी अचीव करा है हाईएस्ट माइलस्टोन। सो यस, इट इज़ ईज़ी। आपकी भी जर्नी बहुत ही जल्द भी जल्द है, यू आर जस्ट अचीविंग गुड गुड माइलस्टोन्स एंड सो आसान तो नहीं रहा होगा, कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आपको भी फेस हुई होगी। इट इज़ ऑलवेज़ चैलेंजिंग, मे बी फैमिली में कुछ चैलेंज या बिज़नेस में कुछ चैलेंज। तो आप कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसी डिस्कस शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? व्हाट वाज़ द मेन चैलेंज यू फेस्ड? क्या डिफ़िकल्टी रही? जैसे देखो, कोई भी बिजनेस जर्नी है जिसमें स्पेशली अगर आपके लिए कोई भी बिजनेस जर्नी, स्पेशली एक लेडी, एक वुमन के लिए जब उसने कुछ भी अपने लिए करना होता है तो डिफिकल्टीज बहुत आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बिजनेस जर्नी कोई बहुत लाइक ऐसे मैंने बिजनेस का ना लिया और मैंने शुरू कर लिया। आई फेस स्ट्रगल अ लॉट। लाइक इन द बिगिनिंग जब मैंने बिजनेस करना था, एज वी नो कि हम लेडीज, हम वुमेन्स, नो मैटर हम लाइक 21st सेंचुरी में है, स्टिल वी नीड अ परमिशन फ्रॉम आवर हस्बैंड, राइट? जब हमने हमारे लिए कुछ करना होता है, चाहे हम इस कंट्री में है, चाहे हम इंडिया में है, लाइक समटाइम मुझे ऐसा फील होता है कि वी आर बोथ लाइफ पार्टनर, पर फिर भी एक वाइफ को कुछ भी करने के लिए हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन राइट? लेनी सबसे पड़ी। पूछना पड़ता है कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ, राइट? तो मैंने भी जब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी, पूछा अपने हस्बैंड से, डिस्कशन की कि दिस इज द बिजनेस आई एम रियली लुकिंग इनटू इट, सबसे पहले वही नो, ऐसी नो। चीजें वर्क नहीं करती, ये होते हैं। सो मेरे हस्बैंड काफी स्केप्टिकल थे, राइट, इन द बिगिनिंग। पर इसमें मैं यही चीज कहूंगी कि स्केप्टिकल होना कोई बुरी बात नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर गोइंग आउट, दे नो मोर देन अस, राइट? तो समटाइम उनको लगता है कि ये घर पर रहती है, इनको नहीं इतना पता, पर वी ट्रू, आर वाइज। बिल्कुल सही है। अब जो माहौल है वो चेंज है, क्योंकि वुमेन्स एजुकेटेड है, राइट? हाँ हमारे जी। पास नॉलेज है, वी नो अ लॉट एज वेल। सो सबसे पहले वही मैंने अपना सारा इसका बैकग्राउंड चेक किया, सब कुछ देखा, जाना, और उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। दिस इज नाउ द ओनली वन एंड गोल्डन चांस फॉर मी कि मैं घर से रहकर कुछ कर सकती हूँ। देन आई से यस। तो मैं डटी रही अपने डिसीजन के ऊपर, पर काफी स्ट्रगल आई। पहले तो यही फैमिली प्रेशर था कि सोशल मीडिया के ऊपर आना, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है उनको लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर इतना आते हैं तो लोग कंफर्टेबल क्या फील कहेंगे, नहीं करते ये लोग ना। सिक्योर फील नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि पता नहीं हमें लोग क्या कहेंगे, मे बी अगर हम सोशल मीडिया पर आएंगे लोग तरह तरह की बातें करेंगे। पर ये हमारी एक मेंटालिटी है। लाइक स्टेप इन द बिगिनिंग मुझे भी थोड़ी हिचकिचाहट थी कि शायद मेरे बारे लोग पता नहीं क्या कहेंगे जब मैं सोशल मीडिया पर आऊंगी, राइट? पर क्योंकि इस बिजनेस में देखो हर एक चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स है। इस बिजनेस में जब हम आते हैं, राइट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस प्लेटफॉर्म, वी आर एजुकेटिंग पीपल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सो हम एजुकेट करते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस होती है ना, वो आपको अच्छी ऑडियंस ही मिलती है, ऐसा नहीं है, राइट? तो वो चीज का एक बहुत बड़ा फियर था कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, राइट? तो वो एक फियर मन से निकाला, लाइक मेरी और मेरी फैमिली के मन से, कि नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट, लाइक प्रॉपर अच्छे वे से हमारे जो बिजनेस अकाउंट्स बनते हैं सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर होते हैं जब हम सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, राइट? और दूसरा था कि मुझे प्रूव करना था कि दिस इज सिस्टम इज वर्किंग, क्योंकि वही एक माइंडसेट तोड़ना था कि 9 to 5 की ड्रिल से बाहर आने के लिए, कि नो, नाउ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एज वेल। तो मुझे बताना था कि टाइम इज चेंज नाउ, कि यस यू कैन डू समथिंग ऑन इट, एग्जैक्टली। राइट? मैंने अपने हस्बैंड से 1 साल का टाइम लिया, मुझे 1 साल का टाइम मिला था कि 1 साल में अगर बिजनेस सेट होता है ठीक, नहीं सेट होता यू हैव टू शट इट ऑफ एवरीथिंग एंड डन। तो बिलीव मी, उस 1 साल में एक साल। आई वर्क हार्ड, आई प्रूव ऑन माय स्किल्स, राइट? तो मैं जो आज पर्सन हूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन बिफोर। आई वर्क अ लॉट ऑन माई सेल्फ, ताकि मैं मेरी हिचकिचाहट खत्म हो, मेरे में कॉन्फिडेंस आए, राइट? तो बिसाइड दैट आई स्टूड फॉर माई डॉटर्स एज वेल, राइट? सो आज मैं अपने लिए तो खड़ी, पर मैंने अपनी डॉटर्स के लिए भी एक बार हाई कर दिया कि इफ यू आर वांट टू डू समथिंग गुड फॉर योर लाइफ, you have to be stay strong, you have to be presentable, you have to be take the decision, and if you think that's एग्जैक्टली। right for you, you have to stood for that, because वही हस्बैंड है आज जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, because when I prove him that no, this is the source of earning, and
इन द बिगिनिंग हिचकिचाहट सबको होती है, पर जब आप देखते हो कि इज द राइट path and how much he see the change in me, that as a person how much I change. Right now he's saying yes, that by that time you have to change yourself as well, आई right? थिंक अपने पे तो वर्क करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडसेट पे अपने वर्क करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। it's क्योंकि true, it's आप true. आप अपने मैं यहाँ घर में बैठी हूँ और मैं पूरे इस समय ये शो कहाँ-कहाँ पब्लिक हो रहा है, डिफरेंट-डिफरेंट माइंड्स के साथ आपको डील करना पड़ता है। तो पहले जब खुद Yeah, का ही माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप औरों के माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? तो आई थिंक ये आपने बहुत that's true, अच्छी बात की है कि पहले अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पहले बहुत ज़रूरी है, तभी आप that's true. एक निखर के आते हैं। कॉलेज और निखर के आते हैं, यूनिवर्सिटी it's में true. भी तो रमन हम यही करते थे, कॉलेज में और हम पूरा साल उन चैप्टर्स को पढ़ते थे, सब्जेक्ट को पढ़ते थे, हम अपनी नॉलेज को ब्रश अप करते थे, रिफाइन करते थे और फिर हम फाइनल पेपर It's में true, अपीयर होते थे। सो आई that's true. थिंक इट इज़ अ क्योंकि वही है सेम, ना इट इसमें, इज़ अ सॉरी लर्निंग। गगन, जैसे एक, या लर्निंग है, और एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, राइट, अगर हम खुद, हुँ। बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, आई नो व्हाट आई एम डीलिंग इनसाइड मी, आई नो दैट वेयर आई एम लूजिंग माय रिस्पेक्ट, आई नो दैट व्हाई आई नीड a source, something that can let me to like bring myself out there, let me to show my daughters, let me to show my family that I have some qualities as well, I can do something for myself as well, right? तो वो चीज इस बिजनेस के थ्रू मैंने की, राइट? तो वही है कि जब आप अपने लिए कोई वाइज डिसीजन लेते हो, तो उसके लिए आपको खुद अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि दिस इज द टाइम फॉर अ चेंज, राइट? कि दिस इज द टाइम एग्ज़ैक्टली। फॉर मी द चेंज। स्पेशली रमन जो डॉटर्स की बात है, जो डॉटर्स की मदर्स है, उन्हें तो एक लाइक एग्जांपल सेट करना ही चाहिए कि लाइक इफ वी आर एट द एज ऑफ 40s वी कैन डू। या तो आप तो यंग किड हो, आप तो स्मार्ट हो, यू आर मोर टेक्निकली अपडेटेड, आपको नॉलेज हमसे ज़्यादा होनी चाहिए एंड आपको या अगर आपकी मदर इस स्टेज पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह के पूरा घर या सँभाल सकती है ना? हम आउटसाइड वर्क और इनसाइड वर्क दोनों को एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रहे हैं। तो दिस वी हैव हाँ सेट अ जी, गुड एग्जांपल फॉर आवर डॉटर्स। इट्स ट्रू, या सो इट्स ट्रू। कहीं एंड न कहीं इसमें कहते हैं ना, अब हाँ, ये चीज़ बिल्कुल। ईज़ी है कि हमें एक राइट प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है, राइट? हमें एक राइट प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा हाँ, है जिसको यूज़ करके, प्रूवन सिस्टम है, टैक्सेबल है, लेजिटिमेट है, जिसको यूज़ करके हमें पता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो व्हाई नॉट? अगर हमें ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ना, तो उसको ग्रैब करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हम उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करते हैं, या फिर बैठे रहते हैं वही एक फेंस सिटर बनकर देखते हैं कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। यहाँ पर मैं एक ही मैसेज, टाइम कभी आता नहीं है। टाइम लाना और पड़ता है, लाइक सेफ और अगर मैं, सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म है, या हमें ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर हम चलो मानते हैं कि अगर हम गिरते भी हैं, तो सँभालने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। बहुत लोग हैं, दैट इज़ दैट्स ट्रू, द दैट्स, बहुत ऐसा लोग नहीं है बैठे कि हैं हम लेकिन लोग अगर कभी आप गिरे नहीं है, हाँ, राइट? जहाँ हम लोगों की जर्नी बहुत स्मूथ है, बहुत अप्स एंड, जैसे कोई भी बिजनेस होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, राइट? पर हम एग्ज़ैक्टली। डटे रहे, हम लाइक व्हाटएवर बिल्कुल। द एफर्ट इज माइन, व्हाटएवर आई नीड टू डू, वो मैं करती रही कि कंसिस्टेंसी इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए आपको 3 चीज चाहिए: कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड कोचेबिलिटी। आप अपने ऊपर वर्क करें, आप अपने आप से कमिटेड रहें कि दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर आई नीड टू गेट सक्सेस एंड आई नो आई कैन गो फॉर, राइट? और आप कंसिस्टेंसी रहें। जब आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, आप एवरीडे शो अप होंगे, तो देखो जैसे हमने देखा है ना कि एक पत्थर को भी, अगर वहां पर वो एक पत्थर पड़ा रहे ना, उसको राउंड बना देता है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर हम तो मेरे खुद दिमाग इंसान में हैं। भी बिल्कुल यही आता है। उस समय ये सब किताबी बातें लगती थी कि ये आप अगर जैसे वो पत मतलब कि कंसिस्टेंसी वाले वर्ड्स की काफ़ी स्टोरीज़ आपको बड़े भी सुनाते थे, हमारे बुज़ुर्ग भी सुनाते थे, इट्स तब ट्रू, वो ना इट्स ट्रू, कहानियाँ लगती थी। बट रियल में अगर मैंने उसको रियलाइज़ करा कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, दैट इज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म। कि दैट्स ट्रू, उसका दैट्स रिजल्ट ट्रू। कैसे आता है। आई एम बीइंग कंसिस्टेंट विद माय दिस शो। अगर मैं छोटा-सा हम्म, यहीं पे बोलूँ कि लाइक पहले मैंने 1 ईयर इसे एवरी मंडे रन करा। तो हम्म, स्टार्टिंग 6 महीने कोई रिजल्ट नहीं आया। मुझे लगता था मुझे हम्म, कईयों ने कहा टाइम वेस्ट करती है, कहीं टाइम वेस्ट करती है। बट नाउ विद बिकॉज़ ऑफ दिस शो ओनली अ,
मेरी ऑडियंस जनरेट हुई है, मुझे बिज़नेस मिला है, मेरे को कई लोगों ने जाना है, मैं एक पब्लिक स्पीकर बनती हूँ और आप जैसे ब्यूटीफुल बिज़नेस पार्टनर से बियॉन्ड माय टीम मैं इंटरैक्ट करती हूँ। लाइक हम हाँ सब जी, अलग-अलग टीम के हैं, अलग-अलग कोचेज़ और मेंटोर्स में हैं, बट ड्यू टू दिस दैट्स ट्रू। शो कंसिस्टेंट रहने की वजह से ही ये शो में इतनी पॉपुलैरिटी आई कि आई एम नाउ इंटरैक्टिंग डिफरेंट बिज़नेस पार्टनर फ्रॉम डिफरेंट टीम एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हाँ जी, कंसिस्टेंसी जो है रियली वर्क, इट्स अ की टू इट्स ट्रू, सक्सेस, दैट इट्स ट्रू। इज़ ट्रू। सो रमन काफ़ी अच्छी आपने लाइक इंस्पायरिंग टॉक्स करी हैं, बट एक चीज़ आ जाती है जब हम बात करते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एक ऑब्वियसली हम अभी तक वुमेन की बात ही कर रहे हैं कि औरतों के लिए अच्छा है, औरतों के लिए अच्छा है, मदर्स के लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, फ्लेक्सिबल है। बट एक बात आ जाती है कि आजकल की लेडीज़ को व्हाई दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अर्न करना ही क्यों है? एंड हाउ आवर प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर देम? या ओनली वन क्योंकि थिंग। हाँ, ये अगर या, देखा जाए ना गगन के आज की जो जनरेशन है उसमें हमें क्यों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अब जो सिचुएशन है हाँ जी, बहुत चेंज हो गई। पहले सिचुएशंस हाँ डिफरेंट जी, होती थी, अब बहुत सिचुएशंस चेंज हो गई हैं। तो नो मैटर व्हाट योर हाँ फादर डू, जी, नो मैटर व्हाट योर हस्बैंड डू, आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए। और आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के ऊपर इतना स्पेंड करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि वो आपको एक एस्टैब्लिश जगह पर देख सकें, आपको कमाता हुआ देख सकें, आपको अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ देख सकें। और बिलीव मी गाइस, ये मैंने खुद ये चीजें अपने ऊपर देखी हैं कि जब आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, यू अर्न योर रिस्पेक्ट, यू अर्न योर रिस्पेक्ट, यू अर्न योर सीट बिल्कुल ऑन द मैंने टेबल। आई राइट? एग्री, तो पहले एग्री। वी डील अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब आप आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है ना, तो आपका एक बार हाई होता है कि यस यू आर डूइंग समथिंग गुड, राइट? तो वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नो मैटर कि आप आज के टाइम में हर एक लेडी को, हर एक लेडी को ना शादी से पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने अपनी डॉटर्स को ऑलवेज यही कहती हूँ कि बिफोर यू थिंक अबाउट द मैरिज, आई वांट यू टू बी अर्निंग दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग, देन यू कैन थिंक अबाउट द मैरिज। क्योंकि आज का टाइम सेम, आई बहुत चेंज थिंक हो कहीं न चुका है, कहीं मेरे बहुत और ज्यादा आपके चेंज थॉट्स हो चुका बिल्कुल है। सेम है। मैं भी उनको यही बोलती हूँ कि लाइक आई हैव 2 डॉटर्स और उनको यही बोलती हूँ, अभी बहुत छोटी हैं बट अभी से बेटा you should be this much of balance in your bank before you go for further ahead, for your फर्दर है, marriages या and all, this much balance। एक स्मॉल हाउस, यस, एक स्मॉल कार आपकी खुद की होनी या चाहिए, आपके पास खुद की इतना होनी हो। चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत हो, बट इतना हो कि या आपको एटलीस्ट अपनी मम्मा या पापा से भी आपको कोई हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। हेल्प, यू शुड बी सो दैट्स ट्रू, मच ऑफ सेल्फ सफिशिएंट। लाइफ या कहाँ पे ले इट्स जा ट्रू, लेती है, कौन से अप डाउन्स हैं। कोविड ने सबको एक बैड फेस दिखाया है और आजकल दैट्स ट्रू। तो आई थिंक हस्बैंड वाइफ दोनों ही पढ़े लिखे हैं। पेरेंट्स अब आजकल पढ़े लिखे बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंस करते ही नहीं है। ठीक है, करते नहीं दोनों है, को इट्स ट्रू, इक्वली एजुकेट करते हैं, तो दोनों एक ही या लेवल पे खड़े हैं। अगर we as a woman, if we are moving out and or sitting at home we are earning, तो बॉयज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हाउस होल्ड में भी इट्स पूरा इट्स ट्रू, पार्टिसिपेट करें। कंट्रीब्यूट करें, तो या आई थिंक नो वर्क इज जेंडर बियास्ड, ये इस एरा ने नो, प्रूव कर दिया है। नो वर्क इज यस, जेंडर दैट्स बियास्ड, एवरीबडी इज डूइंग एवरी काइंड ऑफ वर्क। सो या आई थिंक अगर या हम ये नहीं कहते हैं कि अगेंस्ट जाके फैमिली के करो, बट अपनी फैमिली को पहले समझाओ कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज देयर बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ रमन। और आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, हमारे पास रमन जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, उनके एग्जांपल्स आप अपनी फैमिली से डिस्कस करेंगे, आप उनको इट्स बताएंगे ट्रू, कि यस। हाँ, देखो रमन, ऐसे ही आप बोल दोगे कि मैंने बिजनेस करना है तो नोबडी विल आई थिंक अलाउ यू, यू इट्स हैव ट्रू। टू प्रूव पहले देम। आपको खुद समझना पड़ेगा, कि है क्या इसका, कि आपका पार्ट क्या होगा, क्या आपने एग्जैक्टली करना है इस हाँ, बिजनेस में, राइट? और व्हाई हाँ, यू रियली वांट टू डू, आई थिंक वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाई यू रियली वांट टू डू, वाई फ्रॉम आती है। इनर आप क्या फील कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, अगर आपको बिल्कुल, लगता है, जैसे एक वाई मेरा स्ट्रांग मैं होनी चाहिए। इट्स ट्रू, अगर आपको लगता है कि आप व्हेन आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगते हो, उस टाइम आपको बहुत हिचकिचाहट फील होती है कि आप उनसे पैसे नहीं मांगना चाहते, तो आप उनको ये चीज बताओ कि मैं अपने लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास एक अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जब मुझे कुछ चाहिए मैं अपने पैसे यूज कर सकूं। क्योंकि जब मैं आपसे पैसे मांगती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट वर्थ फॉर एनीथिंग,
राइट? तो इस सीरियसली। चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट? हाँ जी, एग्जैक्टली। एक और जिंदर ढिल्लो लिखती हैं, द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल बिजनेस हेयर वी इंटरेक्ट थ्रू फोन कॉल्स एंड जूम, ट्रेडिशनली वी यूज टू इंटरेक्ट विद द पीपल फेस टू फेस। एग्जैक्टली जिंदर, दैट्स ट्रू। पहले वही यप, चीज आपकी शॉप पे ऑडियंस आती थी, अब हमारे को इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारी ऑडियंस आती है। एग्जैक्टली। ऑडियंस आती एंड है, शी यस, परफेक्ट। सेइंग बी ऑनेस्ट, रिव्यू मनी। शी इज रिटन इन पंजाबी, मैं हिंदी में बताती हूँ कि मनी है तो इज्जत है, मनी है तो लोग पूछते हैं, अदरवाइज तो nobody value you. Exactly, इट्स ट्रू। Jinder, it is happening. I have seen a big change in myself. पहले पैसे मांगने पड़ते थे, now I am a free bird. I'm a या, free bird. इट्स ट्रू। मैं अब कहीं भी हूँ। पहले एक आई थिंक एक कॉस्मेटिक लेना है, फिर हमें सैलून जाना है, देन ऑल्सो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन आवर हस्बैंड कि प्लीज दैट्स ट्रू। लेंड मी सम मनी, आज मैंने यहाँ जाना है, लेंड मी सम मनी, आज मैंने वहाँ जाना है। तो नाउ आई एम इट्स ट्रू। इंडिपेंडेंट एंड दैट इज अ ग्रेट फीलिंग, रमन। आई कैन नॉट टेल यू, लाइक इट्स ट्रू। हर बात, या, छोटी छोटी बातों के लिए अपने हस्बैंड को, अब मुझे परेशान, अपने हस्बैंड को अपना परेशान नहीं करना पड़ता। आई थिंक आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम प्राउडली सेइंग दैट। और अब इट्स ट्रू। बच्चे खुश एंड होते गगन, हैं। इसमें मैं जो ये चीज डॉक्टर भी से ऐड करना पूछो। चाहती हूँ ना, पहले लाइक तभी तो होता था ना, पेरेंट्स अपनी लड़कियों को क्यों बाहर शादी करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मदर्स को भी ऐसा लगता है कि जो चीज हमने डील की है, हम हमारी बेटियां वो चीज डील ना करें, वो उनको हाँ जी, बाहर की कंट्री में भेज देते कि वहां पर अपना काम करेंगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हाँ कई जी। जगह पर बहुत स्ट्रगल लेडीज के साथ, राइट? दे आर स्टिल डीलिंग विद द सेम थिंग, राइट? ऐसा नहीं है। तो पर अब आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस हम अपनी खुद की कंट्री में रहकर भी अपने आप को एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ब्यूटीफुल, आराम से दे, यस, बिल्कुल, हमें अपनी बिल्कुल, कंट्री छोड़कर एग्ज़ैक्टली। दूसरे देश में आकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने देश में अपनी रूट के साथ जुड़े हुए, राइट, इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जो मेरे और एंड मेरे द हस्बैंड की प्लानिंग यही है कि जैसे गोना एग्ज़ैक्टली। ग्रोन अप, बिज़ी इन देयर ओन, वी गोना कम बैक, एग्जैक्टली। राइट? और अब देखा जाए इंडिया में भी दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग दिस हैज कम अप विद सो ग्रेसफुली, दे हैव कम अप विद, लाइक अब तो बच्चे बच्चे 18 इयर्स भी नहीं देखते, मेरे को तो लगता है 16 17 18 साल के बच्चे भी इजीली इन प्लेटफॉर्म्स को अडेप्ट कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग इट्स गुड ट्रू। मनी आउट ऑफ दिस। बच्चे ही या, शिफ्ट हो गए हैं पढ़ाई के साथ साथ, दे आर अर्निंग नाउ। तो इंडिया भी कहीं पीछे इट्स ट्रू। नहीं रह गया है, बस यही है कि हमारी जनरेशन में देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज, जस्ट यू नीड टू गेन दी नॉलेज। तो शो अप, अपने लिए यस, आप पहले खुद बी एक्शन टेकर, अपने लिए आप स्टैंड लें। या, रमन से पूछें, इट्स ट्रू। रमन हैज असम नॉलेज अबाउट दिस बिजनेस। हमारे पास आई है, वी हम अकेले नहीं है, वी हैव अ बिग टीम behind us. दैट्स ट्रू। So we all are या, here to support you. तो whatever kind of information you want, but step आपको उठाना पड़ेगा, उठ के आपको ही आना पड़ेगा। ठीक है? We are दैट्स here ट्रू। to फर्स्ट hand स्टेप hold you. आपने हम संभालने के या लिए बैठे हैं। संभालने के लिए इस जो बैठे हैं, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना पड़ेगा, माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी सक्सेस कहाँ तक पहुंची है, वी आर ऑलवेज देयर टू पुश यू, वी स्टैंड बाय बिसाइड यू, और आपको आगे लेने जाने के लिए हम खड़े हैं। That was a nice interaction with you, Raman. Thank you for sharing your experiences and journey. Wish you all the best and for the next milestone. जल्द से जल्द आप वापस आइए एमएमएम पे और हमारे साथ नेक्स्ट जर्नी शेयर करें, नेक्स्ट माइलस्टोन एंजॉय करें। All the best, Raman, and thank you for being here with us. थैंक यू गगन, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई ऑलवेज सल्यूट यू कि आप इंडिया से रहकर एक एक अपनी पहचान बना रही हैं, अपना एक क्योंकि इंडिया में आई नो Thank इट्स अ you. वेरी बिग डील, राइट, आपके लिए। तो ऑलवेज मैं जब भी अपनी किसी लाइक टीम को भी मैं आपकी ऑलवेज एग्जांपल देती हूँ कि इफ शी कैन डू फ्रॉम इंडिया, व्हाई नॉट यू, राइट? एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज हमारा बिजनेस ही फ्लेक्सिबल है। यू जस्ट नीड इंटरनेट, चाहे आप वो इंडिया में इंटरनेट हो या यूएसए में हो या कनाडा में हो, यू जस्ट नीड इंटरनेट। बिलीव यस, मी, इंटरनेट एंड अ स्मार्ट माइंड, दैट्स इट। इट्स ट्रू। So thank you all the audience जो हमारे साथ बने हुए। Thank you Harry, thank you Neetu for saying that. Nice conversation ladies, thank you. And see you all on alternate Monday, next to next Monday with a new guest and let's share their journey with you. Take care guys. Take care. बाय। Enjoy your nights and enjoy your days.